All right, guys, this is Safrahan. Let's start paper 5, Planning, Analysis, and Evaluation, February, March 2023, variance 52. Let's see what we have in this paper. Okay. Question seems related to equilibrium constant Kc. Aqueous iron 2 ions are usually kept in acidic condition. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सॉल्यूशन में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयंस अवेलेबल हैं, सॉल्यूशन ऑलरेडी एसिडिफाइड है. To prevent them readily oxidizing to aqueous iron 3 ions. That's the reason. Why are we using this? So that हम iron 2 ions को oxidize होने से रोकें. Iron 2 ions reacts with silver ions in a redox reaction. Obviously, it is a redox reaction. इसका मतलब oxidation and reduction takes place simultaneously. The following equilibrium is established. आप नोट करें ये aqueous iron 2 ions हैं, ये aqueous silver ions हैं, आपस में रिएक्शन करके iron 3 ions aqueous medium में exist कर रहे हैं और ये silver है, which is a solid. आप सब जानते हैं कि ये एक solid substance है और हम आपको A1 केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं कि जितने solid substances होते हैं उन सबकी concentration constant होती है, जिसको हम केमिस्ट्री में यूनिट एक्टिविटी कहते हैं. So concentration is constant, that is unit activity. Okay. The concentration of Fe2 plus ions at equilibrium can be found by titration with a standard solution. So guys, wait karo. What is a standard solution? A standard solution एक ऐसा solution जिसकी concentration known होती है. तो solution with a known concentration. All right. So standard solution of aqueous potassium magnate 7 K1O4 is a deep purple in color. The equilibrium constant for the reaction can be found using the following equation. Okay. तो ये Kc का expression आ गया, concentration of product over concentration of reactant लिया है. और note करें हम solid substances को कभी भी consider नहीं करते Kc की value calculate करते हुए, इसलिए examiner ने इसको use भी नहीं किया. A student carries out experiment using the following instructions. Okay, instructions आ गई हैं हमारे पास. Add 100 cm cube of 0.2 mole per dm cube silver nitrate and 100 cm cube of 0.2 mole per dm cube iron 2 nitrate. Iron 2 nitrate का मतलब iron 2 ions. So काम की बात यह है कि यहाँ वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, यानी यहाँ पर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है और यहाँ पर आयरन 2 आयंस की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है और दोनों की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम इनिशियली बिल्कुल सेम है. ऑलराइट. In a 500 cm cube conical flask and stopper the flask. Label the conical flask A. Okay. Leave conical flask A for hours. Why? Why are we leaving conical flask for hours? Okay. First of all, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ होगा. एंड सेकंड थिंग कि मैं इसको 4 आवर्स के लिए छोड़ रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप नोट करें ये दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्जेस दे विल एक्सपीरियंस रिपल्शन. सो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम अचीव होने में टाइम लगेगा, व्हिच इज व्हाई वी नीड टू लीव कॉनिकल फ्लास्क A फॉर 4 आवर्स. ओके, सो हम यहाँ लिख देते हैं take more time to achieve equilibrium. To achieve equilibrium due to
repulsion. Okay. Shaking intermittently, then leave conical flask A untouched for 1 hour. Okay, पहले हमने 4 hours के लिए छोड़ा, उसकी रीजन अब हम 1 hour के लिए स्किप करें, क्यों? So that equilibrium establish हो जाए, ठीक है? To maintain or to establish the equilibrium. Use pipette to transfer 25 cm cube. आप नोट करो, एक बहुत ही accurate volume चाहिए, fixed volume चाहिए, which is why I'm using pipette of the solution from conical flask A into a clean 250 cm cube conical flask. Label this conical flask into B. Okay. So मैंने 25 cm cube लिया और उसको 250 cm cube conical flask में place किया और उस conical flask को मैंने नाम दे दिया flask B का. Add 5 cm cube of 1 mole per dm cube NaCl to the solution into a conical flask B. A white precipitate of silver chloride forms. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास precipitation reaction हुआ जब भी आपको white precipitates मिले, right? Precipitation reaction, that is silver ions, chloride ions, and then silver chloride. Okay, तो रिएक्शन में यकीनन सॉल्यूशन में आपके पास सिल्वर आयंस होंगे कुछ ना कुछ, जो सोडियम क्लोराइड की एडिशन की वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दे रहे हैं सिल्वर क्लोराइड. ओके, यूज अ मेजरिंग सिलेंडर टू ऐड 20 cm क्यूब. आप नोट करें, एक मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम एक्यूरेट नहीं है, 20.00 नहीं है, ठीक है? सो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉट एन एक्यूरेट apparatus to measure volume. 1 mole per dm cube sulfuric acid to conical flask B. सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड आपने पहले भी रखा हुआ था, ये देखें यहाँ था, ठीक है? और अब आप सल्फ्यूरिक एसिड इसमें और ऐड कर रहे हैं, राइट? 20 cm क्यूब 1 मोल पर dm क्यूब. इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट के अंदर है, ठीक है? ऑलरेडी इन एक्सेस. और जब कोई भी चीज एक्सेस अमाउंट के अंदर होती है तो उसकी मेजरमेंट एक्यूरेट करना जरूरी नहीं होता, व्हिच इज व्हाई एग्जामिनर जो है वो मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहे हैं. ठीक है? rinse the burette and fill it with standard solution of KMnO4. तो मैं इस KMnO4 solution से पहले इस burette को rinse करूंगा, और rinse करने का तरीका ये होगा कि मैं उस पूरी की पूरी burette को KMnO4 से भरूंगा, fill करूंगा, और उसके बाद मैं उस पूरे के पूरे KMnO4 के solution को burette से पास करूंगा, ठीक है? इसको कहते हैं rinsing. और जब rinsing हो जाएगी तो फिर दोबारा से KMnO4 के solution से मैं burette को fill करूंगा to get the accurate result. Okay? Add KMnO4 to the mixture in conical flask B until an end point is reached. Okay, तो जब end point आएगा तो आपके पास कलर कौन सा होगा? आप जानते हैं कि conical flask में आपके पास कलरलेस solution होगा. क्यों कलरलेस solution होगा भाई? आयरन 2 आयंस तो ग्रीन होते हैं, आयरन 2 आयंस नो डाउट ग्रीन होते हैं, लेकिन जब आप उनको एसिडिफाई करते हैं दे विल टर्न टू कलरलेस. तो कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन कलरलेस होगा, लेकिन जब आप KMnO4 ऐड करेंगे टाइट्रेशन ब्यूरेट से तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू पिंक. कुछ लोग इसको पेल पिंक भी कहते हैं, बट हमें हमेशा पिंक ही मिलता है, तो दोनों लिख लें, कलरलेस टू पिंक या कलरलेस टू पिंक, पेल पिंक, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. एग्जामिनर इन दोनों पे मार्क्स दे देंगे आपको. ओके, सो हमारा एंड पॉइंट का कलर ये होगा. इसी से हम जज करेंगे कि हमारी जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई है. empty conical flask B and rinse it with distilled water, ready for the next titration. ठीक है? The student repeats the titration until concordant readings are achieved. What is concordant readings?
पहले भी बता चुके। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स का मतलब होता है कंसिस्टेंट रीडिंग। कंसिस्टेंट रीडिंग्स का मतलब क्या होता है कि आपको बेसिकली 0.1 सीएम क्यूब के डिफरेंस से रीडिंग मिले। consistent readings, that is plus minus 0.1 cm cube. Okay. Okay. Part A, the student records their results in table 1.1. All right. तो ये रफ टाइटल है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपके पास आ जाएगा 10.50, क्योंकि ये सब 2 डेसिमल प्लेसेस में दिए हुए हैं। एग्जामिनर है तो मैं भी आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस में रखूंगा। तो टाइट्रेशन 1 मेरे पास आ जाएगा 9.65, टाइट्रेशन 2 मेरे पास आ जाएगा 9.90 और टाइट्रेशन 3 मेरे पास आ जाएगा 9.75। तो अगर मुझे यहाँ से, वैसे तो उसने पूछा नहीं है, लेकिन अगर मुझसे यहाँ से कहा जाए कि बेस्ट टाइट्रेशन या बेस्ट टाइटर रिजल्ट्स बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं बेस्ट टाइटर रिजल्ट्स बताऊंगा ऑब्वियसली टाइट्रेशन नंबर 1 और टाइट्रेशन नंबर 3। ओके, 9.65 and 9.75. Complete the table 1.1. I did that. ये रहा टेबल 1.1। उसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट अ सूटेबल मीन टाइटर used for the standards students calculation. Show clearly how you obtain the mean title. Okay. So जनाब मेरे पास है 9.65 plus 9.75 divided by 2 करूंगा। So guys मेरे पास आ रहे हैं 9.65 plus 9.7 आ रहा है मेरे पास। ओके, एंड ऑब्वियसली 2 डेसिमल प्लेसेस पे है तो 9.70। ऑलराइट। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज स्टेप 6। तो मैंने आपको कहा था अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज suggest why conical flask A is left for 4 hours in step 2। तो ये भी बताया आपको कि जनाब ये दोनों के दोनों आयंस जो हैं सेम चार्जेस कैरी कर रहे हैं, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा। उस रिपल्जन को खत्म करने के लिए ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। सो आप लिखेंगे as both the particles have similar charge, so due to repulsion they have high activation energy, so take more time to establish the equilibrium। Okay, suggest why conical flask A is not shaken during the final hour in step 2। भाई मैं शेक क्यों नहीं कर रहा हूं? ताकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। To allow
equilibrium to be established. Okay. Suggest why a measuring cylinder is the most appropriate apparatus used for measuring sulfuric acid in step 5. तो हमने आपको कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है, इसलिए उसके वॉल्यूम को एक्यूरेट मेजर करना जरूरी नहीं है. Because sulfuric acid is in excess. Okay. So its volume needs to be measured by measuring cylinder. State what the burette should be rinsed with step 6. Step 6 हमारे पास था कि मैंने आपसे कहा था कि rinse the burette and fill it with the standard solution of KMnO4. तो मैं KMnO4 के solution से rinse करूंगा for accuracy. तो मैं लिखूंगा potassium magnate 7, that is aqueous KMnO4. फिर वो कह रहे हैं state the change of the color seen in the mixture in the conical flask B at the end point in step 7. So मैंने आपसे कहा था कि conical flask में colorless होगा और आपको पिंक मिलेगा या फिर पेल पिंक. ठीक है. Now the next is the student repeats the experiment using KMnO4 at a lower concentration. The student obtain a larger mean titer. Suggest one reason why a larger titer is better than a smaller titer. Excuse me. Why a larger titer is better than a smaller titer. तो सबसे पहले तो लोअर कंसंट्रेशन है मेरे पास. ठीक है. तो अगर कंसंट्रेशन लोअर हो गई है तो क्या होगा. और ये भी याद रखिएगा कि KMnO4 जो है वो ब्यूरेट के अंदर है. ओके. तो लार्जर टाइटर से स्मॉलर टाइटर क्यों बेहतर है. अच्छा, ऐसा करते हैं, हम आपको परसेंटेज एरर बताते हैं. परसेंटेज एरर क्या होता है. एरर इन सिंगल रीडिंग 0.05 होता है, और क्योंकि हम इनिशियल और फाइनल रीडिंग लेते हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं. एंड ऑब्वियसली जो टाइटर वॉल्यूम होता है वो आ जाता है आपके पास इन 200. अब अगर कंसंट्रेशन कम है तो जाहिर सी बात है टाइटर वॉल्यूम जो है वो मेरे पास ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा, उसको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, राइट. तो जब टाइटर वॉल्यूम मेरे पास ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है परसेंटेज एरर कम होगा, तो एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट बढ़ जाएगी. इसलिए लार्जर टाइटर इज बेटर देन स्मॉलर टाइटर. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. तो हम यहाँ लिखेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन of KMnO4 require larger volume of larger volume for titration. This larger volume gives
this larger volume gives a smaller percentage error. So this gives more accurate results. यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर हम टाइटर वैल्यू को लार्ज कर ले तो परसेंटेज एरर कम हो जाएगा. ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं. All right. Oh, that's the calculation का part. Okay. The equilibrium is shown when another student carries out the titration with 0.02 mole per dm cube KMnO4. Guys, हमें concentration मालूम है KMnO4 की. The mean titer is 21.10. तो हमें KMnO4 की concentration और volume मालूम है. तो first of all, we can find the moles of KMnO4. ये हो जाएगा 0.0200 इंटू मीन टाइटर क्या था 21.10 डिवाइडेड बाय 1000. तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 4.22 इंटू 10 to the power minus 4 moles. Okay, let's move on to the next part. The ionic equation for the reaction between manganate ions and Fe2 plus ions is shown, and according to this equation KMnO4 का 1 मोल है और इसके 5 मोल्स हैं. तो अगर मैंने इतने मोल्स KMnO4 के कैलकुलेट किए तो बताइए Fe2 plus ions के मोल्स कितने होंगे. So let's find out the moles of Fe2 plus. तो MnO4 नेगेटिव है आपके पास और आपके पास Fe2 plus ions हैं. ये 1 मोल है, ये 5 मोल्स हैं. अगर 4.22 इंटू 10 to the power minus 4 मोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं तो मोल्स ऑफ Fe2 plus आपके पास कितने आ जाएंगे 4.22 exponent minus 4 into 5. So it's going to be 2.11 into 10 to the power minus 3 moles. 2.11 into 10 to the power minus 3 moles. Calculate the concentration of Fe2 plus in the equilibrium mixture. तो भाई ये moles मैंने कितने वॉल्यूम में कैलकुलेट किया? I think 25 cm cube वॉल्यूम में कैलकुलेट किया मैंने, क्योंकि मैंने 25 cm cube को पिपेट आउट किया था. ये रहा है ना, और इस कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस किया था, राइट? ठीक है, तो 25 cm क्यूब में कितने मोल्स हैं भाई? टू 2.11 into 10 to the power minus 3 moles. तो अगर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो मैं 1000 cm क्यूब से कंपेयर कर लूंगा. तो 2000 divided by 25 is going to be 0. तो concentration of Fe2 plus ions in equilibrium mixture is 0.0844 mole per dm cube. तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.0844 मोल पर dm cube. ओके, okay, next is suggest why it is not necessary to measure the concentration of silver ions in the equilibrium mixture experimentally. देखो, नोट करो, मैंने कहा था कि इनिशियली सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन और Fe2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन सेम है,
और इन दोनों के दरमियान रेशियो भी 1:1 का है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम ही होगी, इक्वल होगी, इसलिए उसको डिटरमिन करना एक्सपेरिमेंट से जरूरी नहीं है। ठीक है, सो आप लिखोगे इनिशियली concentration of silver ions and concentration of Fe2 plus ions are equal with 1:1 in equation. So concentration at equilibrium for both ions would be same. ठीक है, all right. Next is determine the decrease in concentration of Fe2 plus ions from the initial solution. Oh my goodness, initial solution से जो decrease in concentration of Fe2 plus ions है वो determine करो. Tricky. That for 1 mark. My goodness. Hence, determine the concentration of Fe3 plus ions in the equilibrium mixture. I mean, 1 mark के लिए तो इतनी कैलकुलेशन अगर आप करवाएंगे तो जाहिर सी बात है, मुनासिब बात तो नहीं है. चले, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा. इनिशियल सोल्यूशन मेरे पास Fe2 प्लस आयंस का कितना था, 0.2 मोल पर डीएम क्यूब और 100 सीएम क्यूब. तो मैं इस इनिशियल सोल्यूशन में सिल्वर आयंस सॉरी Fe2 प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ. ठीक है, या सो मैं सबसे पहले इनिशियल मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आयंस कैलकुलेट करूंगा. तो ये हो जाएगा मेरे पास 100 इंटू 0.200 डिवाइडेड बाय 1000. सो बेटा हमारे पास आ जाएगा 0.0200 मोल्स. सही है. अच्छा जी, इनिशियली टोटल इनिशियल वॉल्यूम कितना था मेरा, 200 सीएम क्यूब. कैसे पता चला, 100 सीएम क्यूब आपका सिल्वर आयंस थे और 100 सीएम क्यूब आपके पास Fe2 प्लस आयंस थे. जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो टोटल वॉल्यूम इन द बीकर शुड बी 200. सो 200 सीएम क्यूब के अंदर आपके पास Fe2 प्लस आयंस के मोल्स इतने हो गए. सही है, ये याद रखिएगा. सो 200 सीएम क्यूब solution contain how much moles, 0.0200 moles. इन मोल्स को अगर मुझे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो मैं 1000 सीएम क्यूब से कंपेयर करूंगा. सो 1000 सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच, तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस आयंस. ओके ओके ओके, एक मिनट. इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम से निकालना है. तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस आयंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब. ओके, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई इनिशियल सॉल्यूशन से. अभी मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है कि अगर इनिशियल सॉल्यूशन था तो उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी.
अब मुझे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन निकालनी है Fe2+ आयन की। सो डिक्रीज in concentration of Fe2+ ions। तो इनिशियल मेरे पास कितनी थी भाई 0.1 जो मैंने अभी कैलकुलेट की, और आपने कैलकुलेट कितनी की थी 0.0844। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हाट आई एम डूइंग गाइस, वेट करो। ये हो जाएगा 0.1 माइनस 0.0844। तो यहां से कंसंट्रेशन कितनी आ रही है 0.0156 मोलर। मोलर का मतलब मोल पर डीएमक्यू। ये मैंने Fe2+ आयन की कंसंट्रेशन निकाली है एट इक्विलिब्रियम, राइट। वो पूछ रहे हैं एट इक्विलिब्रियम Fe3+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो गाइस आप जानते हैं ना, इन दोनों में 1:1 का रेशियो है। तो जो कंसंट्रेशन आपने Fe2+ आयंस की निकाली है वही एग्जैक्टली एट इक्विलिब्रियम Fe3+ आयंस की होगी, क्योंकि जितने मोल्स रिएक्ट होंगे उतने मोल्स फॉर्म भी होंगे, राइट। मेरे पास जगह नहीं है, बट मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन of Fe2+ is equals to concentration of Fe3+ ions due to 1:1 ratio. So obviously concentration of Fe3+ ions भी कितनी होगी 0.0156 mole per dmq. Determine the value of Kc. Determine the value of Kc. तो Kc की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला लेता हूँ। होल्ड ऑन, मैं यहाँ से फॉर्मूला ले लेता हूँ। सही है, मैं फॉर्मूला लेके यहाँ लिखता हूँ। नाउ Fe3+ आयंस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हमने कितने निकाली है 0.0156 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ आयन कितनी निकाली है हमने एट इक्विलिब्रियम 0.0844 इनटू सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज 1:1 का रेशियो है दोनों के दरमियान अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो यहाँ से Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Kc की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2.18998। तो जाहिर सी बात है मैंने उसको राउंड ऑफ करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 2.19। अच्छा, यूनिट का इशू है, ये यूनिट है मोल पर डीएमक्यू और ये यूनिट होगी मोल पर डीएमक्यू इनटू मोल पर डीएमक्यू। सही है, ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यूनिट होगा 1/मोल पर डीएमक्यू। तो आपकी फाइनल यूनिट गाइस होगी मोल इनवर्स डीएमक्यू। दैट्स एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। All right, I hope it makes sense to you. I hope you understand the whole logic behind this. Let's move on to the next part of the question. Oh, that is question number 2. Okay, the reaction between iodide ions and aqueous hydrogen peroxide takes place in acidic condition. Guys, this reaction I have done with you in group 17 और मैंने उसमें ये बताया था आपको कि आयोडाइड आयंस जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एंड ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। फिलहाल तो इतना काफी है कि रिड्यूसिंग एजेंट है।
और हमने आपको ये भी कहा था कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विच मीन्स ये एक रीडॉक्स रिएक्शन है। ओके, आप जानते हैं कि आयोडीन हमें मिल रहा है, तो आयोडीन का यहां पर हमें ब्राउन सोल्यूशन मिलेगा। ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, तो इनिशियली कलरलेस होता है लेकिन जब रिएक्शन हो जाता है तो ब्राउन सोल्यूशन मिलता है। तो कलरलेस सोल्यूशन से ब्राउन सोल्यूशन, ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। वो कह रहे हैं स्टूडेंट कैरीज आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? पावर टू विच द कंसंट्रेशन इज रेज्ड, power to which the concentration is raised in rate equation. Okay, with respect to the concentration of iodide ions, the student does this by measuring the time taken for a fixed amount of iodine to form. Time taken कह रहा है, तो टाइम टेकन का मतलब ये है कि टाइम आप उस वक्त नोट डाउन करोगे जब आप स्टॉप वॉच यूज करोगे। सही है। एंड ऑब्वियसली आप जानते हैं कि डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस बनाएंगे आप, इसका मतलब ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए आप कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयंस चेंज करेंगे। तो ये आपका क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? व्हाट वी चेंज इन द एक्सपेरिमेंट। व्हाट वी चेंज, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयंस चेंज करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। ठीक है। नेक्स्ट, a known amount of aqueous thiosulfate ions, ये reducing agent होते हैं। Remember always, these are the reducing agents. Okay, and I believe मैंने ये करवाया आपको, हाँ, ये रिएक्शन भी करवाया मैंने, A1 में ही करवाया, A2 में भी करवाया है। Reducing agent in the reaction mixture that reacts with iodine in this, तो ये भी हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ है। इसको कहते हैं tetrathionate ions, if you remember. After all the thiosulfate ions have reacted in reaction 2, any further iodine form is detected by using a starch indicator. Starch वैसे तो कलरलेस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, लेकिन आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये भी एक रीडॉक्स रिएक्शन है हमारे पास, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड, 50 cm cube beaker containing correct mass of solid potassium iodide crystal needed to make 250 cm cube of 0.1 mole per dm cube potassium iodide. ठीक है, बात समझ में आती है। करेक्ट मास तो आप उसी वक्त निकालोगे ना जब आप वेइंग बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करोगे। यानी करेक्ट मास आप उस वक्त निकालेंगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद 0.1 मोल पर डीएम क्यूब थायोसल्फेट, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब H2O2, 0.2 मोल पर डीएम क्यूब H2SO4 स्टार्च इंडिकेटर डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, दैट्स अ नॉर्मल रिएजेंट। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि हमने एक स्पेसिफिक मास लिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड का, और उसको हम 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं कुछ इस तरह से बता सकता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक डिश है, उप्स, मेरे पास एक डिश है और बेटा इस डिश के अंदर सॉलिड है। ठीक है, दिस इज सॉलिड KI। मैं क्या कर रहा हूं?
इस सॉलिड को उठाकर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है मेरे पास, उसमें प्लेस कर रहा हूं। ये 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है और मैं कंसंट्रेशन कितनी ले रहा हूँ 0.100 मोल पर डीएम क्यूब, जिसको मैंने मोलर कह दिया। तो बेसिकली इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मैंने क्या किया है, डिस्टिल वाटर ऐड किया होगा सोल्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि हम सोल्यूशन बनाने के लिए हमेशा डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। तो बेसिकली इस पूरे सिनेरियो में मोल्स क्या होंगे, सेम। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, लेट्स सपोज मेरे पास 0.1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड था, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा पोटेशियम आयोडाइड के एमआर से तो मोल्स आएंगे, तो एग्जैक्टली मैं वही मोल्स यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मोल्स तो सेम ही रहेंगे इसमें। ठीक है ना, कि मास चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑल राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, a second student looked at the equation for reaction 1 and stated that the order with respect to the concentration of iodide ions must be second order because the balanced equation contained two iodide ions. Suggest why a balanced equation alone cannot be used to determine the order of reaction. देखो पढ़ाते हुए मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं होता कि जो नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन के अंदर गिवन हो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिटरमिन किया जाता है, और जब हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है स्लो स्टेप रिएक्शन भी आता है, फास्ट स्टेप रिएक्शन भी आता है। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि एक्सपेरिमेंट में वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके लिहाज से ऑर्डर निकलता है। ठीक है, हो सकता है सिर्फ सिंगल फर्स्ट ऑर्डर हो, क्योंकि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट जो है वो स्लो स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हो। हमें तो नहीं पता ये बात, राइट, कि मैकेनिज्म किस वे से मूव कर रहा है, किस वे से प्रोसीड कर रहा है। सिंस वी डोंट नो द वे ऑफ मैकेनिज्म, व्हिच मींस वी डोंट नो द एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे क्या, why a balanced एक मिनट, why a balanced equation alone cannot be used to determine the order of reaction. So मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा कि order of reaction can be determined experimentally by using the slow step and fast step mechanism information. ठीक है, एंड सिंस ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो वी एग्जैक्टली डोंट नो कि वो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। ठीक है, describe how the student makes 250 cm cube of 0.1 mole per dm cube potassium iodide starting from the sample of solid potassium iodide in 50 cm cube beaker. Okay. Give the name and size of any key apparatus used. Describe how the student ensures the volume is exactly 250 cm cube. You may wish to write for using the series of numbered steps. Okay. So what we can do is हम एक्चुअली सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड का एमआर निकालते हैं। ठीक है, चले देखते हैं। मोल्स अगर मुझे निकालने हैं पोटेशियम आयोडाइड के, तो मैं 250 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.100 से, डिवाइड कर देता हूँ 1000 से। सो मेरे पास मोल्स कितने आ जाएंगे, 250 into 0.1 divided by 1000 is going to be 0.025 moles, right? दूसरा स्टेप, इन मोल्स के थ्रू मैं मास निकाल लेता हूँ। तो मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड
मोल्स है मेरे पास 0.025 और MR ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज गोइंग टू बी 166.0। सो मेरे पास मास कितना आ जाएगा 4.15 ग्राम। वो आपसे मांग नहीं रहे, लेकिन मैं निकाल के दिखा रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे पोटेशियम आयोडाइड में, क्योंकि एट टाइम्स निकलवा लेते हैं वो प्लानिंग में, राइट। और उसने यहाँ कहा हुआ भी था ना हमसे, ओहो किधर गया, यस उसने यहाँ कहा था हमसे, किधर गया किधर गया, गाइस ये रहा, करेक्ट मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड क्रिस्टल्स नीडेड टू मेक दिस मच सॉल्यूशन। तो मैंने मास निकाल के दिखाया आपको, किधर गए, ओह अभी हम इसी पेज पे हैं। ओके ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस मास को उठाकर 50 cm क्यूब बीकर में प्लेस करके डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करूंगा। डिसॉल्व 4.15 ग्राम of potassium iodide in 50 cm cube distilled water in 50 cm cube beaker containing distilled water. What I'm doing, guys, distilled water. Okay. इस सॉल्यूशन को ट्रांसफर करूंगा, बल्कि ट्रांसफर करने से पहले स्टर करूंगा। Stir the solution to mix well. फिर उसके बाद ट्रांसफर करूंगा इस सॉल्यूशन को in a 250 cm cube volumetric flask. ठीक है, और उन्होंने हमसे कैटेगोरिकली कहा है how the student ensures that the volume is exactly 250 cm cube। तो हम बताएंगे कि हम ड्रॉप टू ड्रॉप एडिशन करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रांसफर द सॉल्यूशन इन अ 250 cm cube volumetric flask and top up top wise till 250 cm cube। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ये जो बीकर है इसको मैं वॉश करूंगा डिस्टिल वाटर से और इसकी वॉशिंग को भी ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, वॉश द बीकर, wash the beaker with distilled water and transfer this washing and transfer this washing into the volumetric flask। ठीक है, shake the flask to mix the content well। shake the flask to mix well। ठीक है, I hope for 3 marks it's more than enough। ठीक है, next part C, the student carries out experiment 1 using the following steps: add 25 cm cube of 0.2 mole per dm cube sulfuric acid into the conical flask। Okay, add 20 cm cube of distilled water to the conical flask from the burette।
Add 5 cm cube of 0.1 mole per dm cube into the conical flask from the burette. Okay, 5 cm cube of 0.1 mole per dm cube sodium thiosulfate to the conical flask from the. How many burettes in this? 1, 2, 3. Okay, fine. That means कि ये experiment बहुत मुश्किल होगा because there are so many burettes in this. Add 2 centimeter starch indicator to the conical flask. All right. Use another burette to add 10 cm cube of 0.1 mole per dm cube H2O2 to a smaller beaker. Okay, that's a lot. Actually, ये भी conical flask में, 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 starch indicator भी conical flask में. ठीक है, ये याद रखिएगा. उसके बाद है आपके पास add the content of the beaker to the conical flask and start a timer immediately. Stop the timer when the starch indicates the presence of this. यार जब आयोडीन बनेगा तो जाहिर सी बात है स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा. तो स्टार्च shows blue black color if iodine is present. ठीक है, पहली तो बात ये होगी. और जाहिर सी बात है टाइमर इमीडिएटली आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब स्टॉप वॉच यूज कर रहे होंगे आप. ठीक है, my goodness. The student carries out a further 6 experiments by repeating step 1 to step 7 using the volume shown in table. Okay, volume of H2SO4 fixed है, उसमें कोई changes नहीं है. Volume of distilled water change हो रहा है, volume of Ki change हो रहा है, यानी Ki की concentration change कर रहा हूं मैं, और यही हमारा plan था. चाहिए तो volume of H2SO4 और volume of sodium thiosulfate remains same, volume of indicator remains same, that is 2 to 3 drops. सिर्फ चेंजेस क्या हो रही हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ के आई, क्योंकि हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस बनाने के आई के. एंड देन टाइम टेकन. ओके, वो पूछ रहे हैं आपसे स्टेट हाउ द स्टूडेंट कुड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट. भाई रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी वो होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो. रिलायबिलिटी इज बेसिकली repeating the experiment. भाई एक्सपेरिमेंट क्यों रिपीट करना होता है? सो दैट मेरे पास एक कंसिस्टेंट वैल्यूज आए, और जब मेरे पास कंसिस्टेंट वैल्यूज आएंगी तो फिर मैं क्या करूंगा? जाहिर सी बात है जब मेरे पास कंसिस्टेंट वैल्यूज आएंगी तो मैं उनको यूज करूंगा. ओके, मैं यहाँ लिख देता हूं repeat the experiment repeat नहीं आप repeat the experiment है, repeat each experiment with the same condition. कंडीशन चेंज नहीं कर सकते, कंडीशन चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली फिर रिपीट करने का और रिलायबिलिटी का कोई फायदा नहीं होगा. रिपीट ईच एक्सपेरिमेंट under the same कंडीशन. ठीक है, फिर वो कह रहे हैं स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंट 1 to 7. यार इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं जो चेंज कर रहे हैं. सो हम यहाँ लिख देते हैं तो concentration of potassium iodide changes during this experiment. इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा.
है ना, और जाहिर सी बात है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं डिस्टिल वाटर और के आई का वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूँ हर एक्सपेरिमेंट में, राइट। तो अगर ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं व्हाट वी मेजर, व्हाट वी मेजर। और इस एक्सपेरिमेंट में हम मेजर क्या कर रहे हैं? टाइम टेकन स्टॉप वॉच के थ्रू, सही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका ऑब्वियसली वाई एक्सेस के ऊपर होगा, सही है। सो ये आपका वाई एक्सेस पे है और ये आपका कंसंट्रेशन और ये एक्स एक्सेस के ऊपर होगा, सही है। तो स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ के आई, क्योंकि हम वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर मुसलसल, ठीक है। तो उसका मतलब कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ के आई भी लिख सकता हूँ बेटा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि वॉल्यूम से कंसंट्रेशन निकलेगी ना। फिर वो कह रहे हैं आपसे इन एक्सपेरिमेंट 5 द स्टार्च इंडिकेटर चेंज कलर इमीडिएटली on adding H2O2 the student realized an error had been made, suggest which step was missed in experiment 5. Okay. Starch indicator changed color immediately. Okay. अगर immediately change कर रहे हैं तो इसका मतलब आयोडीन ऑलरेडी अवेलेबल था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सो आयोडीन ऑलरेडी available from the very beginning, तो एरर क्या हुआ? कौन सा स्टेप मिस हुआ? स्टार्च इंडिकेटर हमने कहां पर ऐड किया था? हम्म, ओ यस, देखो मैं समझाता हूँ आपको। H2A2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपके पास आयोडाइड आयन था, इसने इसको ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बनाया। जब इसने इसको यानी ये था H2O2 और पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आयोडीन बना रहे हैं। अब ये आयोडीन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अवेलेबल था, तो जैसे ही आपने ये स्टार्च इंडिकेटर ऐड किया फॉरन ब्लू ब्लैक कलर आ गया। तो वो कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। बताओ वो गलती क्या हुई? वो गलती ये थी कि मैंने इस आयोडीन को इस सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट नहीं किया, मैं करना भूल गया हूँ। तो मैंने स्टेप 4 जो है वो मिस कर दिया और डायरेक्ट स्टेप 5 पे चला गया, जिसकी वजह से मुझे ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन स्टार्च इंडिकेटर का मिला। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, ठीक है। क्या हो गया? सो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 4, बट ये पूरी बात लिखें कैसे समझाया है हमने। स्टेप 4, because sodium thiosulfate was omitted due to which iodine shows
color immediately with starch सही है। तो ये याद रखिएगा कि भाई H2O2 आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है। ये आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करना चाहिए था, और जब वो रिएक्शन करता तो जाहिर सी बात है फिर मैं स्टार्च इंडिकेटर ऐड करता। मैंने ये ओमिट कर दिया और डायरेक्ट स्टार्च इंडिकेटर ऐड किया, जिसकी वजह से कलर जो है वो इमीडिएटली अपीयर हो गया। ओके, seems like just getting tougher and tougher. The rate equation is represented as this. तो ये जो n है guys, ये n आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एंड आई बिलीव मुझे यही मालूम भी करना है क्योंकि n लिखा हुआ है। सही है। वो कह रहे हैं आयोडाइड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयंस इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ Ki। मैंने यही कहा था आपको कि अगर वॉल्यूम चेंज करें तो कंसंट्रेशन चेंज होगी। वॉल्यूम ऑफ Ki इज बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ Ki बेसिकली था क्या? वॉल्यूम ऑफ Ki plus volume of distilled water gives you the concentration, है ना? तो थोड़ी सी जगह कर लेते हैं, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आइंस। कैसे बना रहा हूं मैं? वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू। फिर वो कह रहे हैं n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड, रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। ये तो बिल्कुल सही बात है कि रेट जो है वो 1/T होता है। मैंने बताया है आपको कि अगर शॉर्टर टाइम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर है। सही है। फिर उसके बाद है log रेट इक्वल्स टू log K प्लस n log कंसंट्रेशन। ओके ओके ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको उठाकर यहाँ कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए, और इससे रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जो रेट है, ये रेट किसके इक्वल है? 1/T के इक्वल है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, log 1/T इक्वल्स टू log K प्लस n log कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड। और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयंस है ये किससे मिल रहा है? वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, इससे मिल रहा है। तो मैं अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन, और जगह नहीं है, उप्स, थोड़ी सी जगह बना ली हमने। अच्छा, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log 1/T इक्वल्स टू log K प्लस n log कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड। कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ K वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो इसकी जगह पे मैं वॉल्यूम रख दूं। सही है। अब हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं? हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ये आपका क्या है? y इंटरसेप्ट, जो कि बेसिकली आपका c होगा। ये आपका क्या है? log v x एक्सिस, और ये n क्या होगा? आपका ग्रेडियंट, और यही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होगा, है ना? आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। V is the volume of potassium iodide and T is the time taken for the color change. Give all the values to three significant figures. Important बात है ये. The results of experiment should not be 5 be used. Okay. Log V, log V, log V. तो ये V मैंने डिटरमिन करने हैं.
तो मेरे पास राउंड ऑफ होकर वैल्यू आएगी, क्योंकि मुझे आंसर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.699। मैं सबसे पहले इन सबको फिल करता हूँ, फिर इसको फिल करूंगा ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। फिर है log 10 लूंगा तो ये हो जाएगा 1.00। फिर है log 12.5 तो ये हो जाएगा 1.10। फिर है log 15 तो ये है 1.18। फिर है log 20 तो ये है 1.30। और फिर log 25 तो ये है 1.40। ठीक है, log 1/t यानी टाइम मुझे दिया हुआ है, तो log 1/257 करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास -2 पॉइंट समथिंग। इसको राउंड ऑफ करके मैं लिख रहा हूँ -2.41। फिर है -2.08, देन -2.05। फिर log 1/76 is going to be -1.88, then minus log 1/56 is going to be -1.75, last but not the least -1.64। 2 मार्क्स के लिए तो बहुत आसान था, फ्री के मार्क्स मेरी नजर नहीं है। ठीक है, ओके। Next is plot a graph on the grid to show the relationship between log v and log 1/t. Use a cross to plot each data point. Draw a line of best fit. तो ये मैंने आपके लिए पॉइंट्स प्लॉट कर दिए थे ताकि टाइम सेव हो जाए। ऑलराइट, और ऑब्वियसली प्लॉट करने के बाद पता चला कि स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनी है। वो कह रहे हैं a timing error caused the most anomalous point on the graph. Circle this point. Okay, circle this point. This is the most anomalous point क्योंकि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट से सबसे ज्यादा दूर है, और वो कह रहे हैं कि टाइमिंग एरर है, यानी दो चीजें हो सकती हैं। स्टॉप वॉच स्टार्ट अर्ली, या फिर स्टॉप वॉच स्टॉप्स लेट। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। इन दोनों केसेस में टाइमिंग का एरर आएगा जिसकी वजह से नॉर्मलस पॉइंट जनरेट होगा। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन द एरर इन टाइमिंग्स व्हिच लेड टू दिस पॉइंट। ओके 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 ओके, क्या सोच सकते हैं इसके लिए हम? सोचना क्या है, देखें। ये वैल्यू मोर नेगेटिव हो रही है, ऐसा ही है, तो ये पॉइंट यहां पर है, इट हैज टू बी हेयर, यहां होना चाहिए था इसको, तो ये लेस नेगेटिव होता, लेकिन आया क्या है मेरे पास, मोर नेगेटिव। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये मोर नेगेटिव है। होना क्या चाहिए था, लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव। इट हैज टू बी हेयर, राइट, बट हमें यहाँ मिला है, तो यहाँ पर होता तो ये लेस नेगेटिव होता। क्योंकि वो हमें यहाँ मिला, इसका मतलब ये मोर नेगेटिव है, क्योंकि ये मोर नेगेटिव हो रही है वैल्यू इस डायरेक्शन में। क्यों हो रही है मोर नेगेटिव वैल्यू? देखो ऐसे मूव कर रहा हूँ, वैल्यू मोर नेगेटिव हो रही है। जब वैल्यू मोर नेगेटिव होगी तो ऑब्वियसली टाइम भी ज्यादा होगा। सही है, ठीक है ना। और इसकी रीजन एक ही है कि आपने बहुत, या तो लेट स्टॉप वॉच को बंद किया या फिर बहुत अर्ली स्टार्ट कर लिया, जिसकी वजह से टोटल टाइम जो था वो ज्यादा हो गया, और जब टोटल टाइम ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये मोर नेगेटिव हो जाएगा। मेक सेंस ना? ये एक लाइन के अंदर लिखना है, कैसे लिखेंगे एक लाइन के अंदर, ये तो काफी डिटेल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट। And I'm almost reading.
is more negative than expected, so log 1 over time is more negative. ठीक है? This means time increases, hence it shows that the stopwatch stops late. All right, or a stopwatch starts too early to give uh, too early so that total time would increases. ये दो पॉइंटर्स हैं तो दो और करके लिख दिया ना मैंने, ठीक है. Total time would increase. Total time would increase. So log 1 over t, अगर total time in log 1 over t becomes more negative. Becomes more negative. ठीक है, दोनों तरह से देखा जाए तो आप बात कर सकते हैं. आप ये कह सकते हैं कि जी 1 ओवर टी जो है वो मोर नेगेटिव है, टोटल टाइम ज्यादा है. आप ये भी कह सकते हैं कि भाई टोटल टाइम ज्यादा था इसलिए 1 ओवर टी नेगेटिव है, तो स्टॉप वॉच या तो कम बंद की है. ये बस इस कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है. ठीक है, ओके. वो कह रहे हैं आपसे यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द ग्रेडियंट. ओके, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट. ओके, ओके. Use your graph to determine the gradient of the line of best fit. State the coordinates of both points you used in your calculation. There must be selected from your line of best fit gradients to 2 decimal places. Okay, gradient to 2 decimal places. इस ग्राफ में से कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, बट मैं आपकी आसानी के लिए ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ. ठीक है, ये है मेरे पास. मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ. उप्स, मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -2.30 और 0.80. Am I right? यस. ठीक है, एक पॉइंट तो ये ले लिया मैंने, और दूसरा पॉइंट जो है ना वो मैं ये वाला ले लेता हूँ.
तो ये है 1.30 माइनस 1.75। ओके, एक और बात, यहाँ पर y इंटरसेप्ट नहीं है, नो y इंटरसेप्ट। और यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्यों नहीं है? बिकॉज x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको। ये हो जाएगा 1.30 माइनस 1.30 के साथ क्या था, -1.75, -1.75। उसके बाद दूसरा है मेरे पास 0.80, और इसके साथ क्या था, -2.30, -2.30। सो हम सब ने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना सीखा है, और ग्रेडियंट एक्चुअली क्या होता है हमारा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। सो डेल्टा y जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1.75 माइनस -2.30 डिवाइडेड बाय 1.30 माइनस 0.80। सो ये आ जाएगा मेरे पास 0.55, और ये आ जाएगा मेरे पास 0.50। तो मेरे पास यहाँ से आंसर आएगा 1.10, क्योंकि वो मुझसे कह रहे हैं 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है। तो मेरे पास 1.1 आया है, लेकिन क्योंकि वो कह रहे हैं 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर देना है, इसलिए मैं आंसर 1.10 दूंगा। सही है। Next, part 5, that's the last part of this question. The total percentage error from measurements is determined to be 5.25. Okay, total percentage error from the measurement is this. The true order of reaction is 1. Okay, मेरे पास gradient कितना है 1.1, तो ये true तो नहीं है, सही है ना? Use this and your gradient from D4 to determine whether the error in the experiment could be accounted by the error from measurement and is caused by other factors. Show any working. Okay. Okay. भाई परसेंटेज एरर अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? जो मैंने वैल्यू निकाली है 1.10 वो है, उसको मैं ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करूंगा, इनिशियल से डिवाइड करूंगा, इनिशियल वैल्यू से इनटू 100 करूंगा। तो मेरे पास यहाँ से परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 10%। तो पहले कितना था 5.25, और अब कितना है 10%। तो इसका मतलब बढ़ गया। तो जो अगर परसेंटेज एरर बढ़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल एरर हुआ दूसरे फैक्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से ये परसेंटेज एरर जो है वो बढ़ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10% is bigger than 5.25%, which means error in the experiment is caused by other factors too. हमने पहला तो फैक्टर वही निकाला था ना कि स्टॉप वॉच या तो लेट होगी, लेट बंद कर रहे हैं, या बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिए। तो ये कोई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से
उसकी वजह से तो 5.25 आ रहा था, लेकिन अब 10% आ रहा है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू वेरी मच गाइस।